So go to this part, chapter 2, 2.6. Okay. Meaning of fixed capital. I'm reading. Please follow. Fixed capital refers to the funds required for acquisition of fixed assets. So fixed capital is basically the money required to acquire fixed assets. Fixed assets are meant for generating income. These assets are used permanently for business operations. Land building, plant machinery, furniture, motor vehicles, etc. So basically you need to remember 3 points. When you are asked what is fixed capital, point number 1, इसको repeat करने बोलेंगे. Used to acquire fixed assets. Used to acquire fixed assets, like land, building, furniture. Number 2, intention or purpose or objective. Okay. Objective is to generate income. Objective is to generate income. Suppose if I am here, you are sitting on a desk. You are sitting on what? Bench, so desk and bench. It is fixed asset or working something, fixed. Current asset. Fixed asset. So when I acquired this, the purpose is to generate income, which means to run a business. Current asset भी होता है, but वो भी होता है. But fixed asset का purpose रीसेल करना नहीं है. करंट एसेट से हम लोग उसको बेच के तुरंत रीसेल कर देते हैं. फिक्स्ड एसेट से हम लोग इनकम जनरेट करेंगे ओवर द इयर्स. तुमको जो याद रखना है वो है कि ये 3 पॉइंट्स याद रखो अपने डेफिनेशन में. नंबर 1 इज टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स. नंबर 2, objective is to generate income. And third is fixed assets are permanently blocked in business. Okay. 3 points दिमाग में आया. Archesman, go to chapter 2, 2.6. Book में जाओ. 2.6 meaning of fixed capital. हाँ. So Kohan, what are the 3 points? It is used to acquire fixed assets. So what is used to acquire fixed assets? Capital, fixed capital. Fixed capital. We are talking about fixed capital. It is used for generating capital. Income. Point 2 is the objective is to generate income. And third? याद रखो. It is blocked. It is blocked permanently. Blocked means sunk. Once you invest it, you cannot recover it. Understood? Suppose if you have bought a big machine or even an air conditioner, so whatever money you have put, that money goes away. You cannot get it back immediately because you are not going to sell it. If I have bought a tractor or a big machine or a car or a motor bus, for example, a transport company has to invest in so many buses, the tour buses. तो एक बस का कॉस्ट होता है 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख. तो अगर ऐसा 5 बस भी खरीदोगे तो 1 करोड़ से ज्यादा चला गया, तो वो तो गया हमेशा के लिए, है ना. वो क्या आएगा तुरंत? वो तो एक कस्टमर 200 500 रुपया देगा, तो आने में बहुत साल लग जाएंगे. So the fixed capital is gone. तो ये 3 points याद रखो. These 3 points will make up your definition, whatever way you write. वापस से हम पढ़ रहे हैं. Fixed capital refers to the funds required for acquisition of fixed assets. So point 1 is to acquire fixed assets. Then fixed assets are meant for generating income. इसको अपने words में लिख सकते हो. The objective is to generate income. Third, these assets are used permanently for business operations. Again अपने मन में लिख सकते हो. These assets get permanently blocked in the business. And then add examples. Examples you can write on your own. The general examples which you write as fixed assets in balance sheet. Okay. So for example, land, building, plant, machinery, furniture, fixture, motor vehicles, etc. are examples of fixed assets. यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करो. हेलो, हम आपको थोड़ा बाद में कर रहे हैं फोन. हाँ, मैं तो ऑनलाइन टास्क कर रहे हैं अभी, हम बाद में कर रहे हैं. हाँ. Okay, so ये definition minimum लिखना है. After that, I am reading, just follow. These assets are not fixed in value. Rather, so the word fixed assets does not mean that the assets is fixed in value. The value can depreciate or appreciate. It can also appreciate, like land.
If I purchase land, land will appreciate. It will not go down. Its value will increase over the years. तो यहाँ लिखा है कि assets are not fixed. They can change. Their values can change. Rather, they are needed for long term and cannot be disposed of, means cannot be sold away without breaking up the business. Understood? You cannot sell them unless you are breaking the business. If I sell all the tables that I have here, it means I cannot run the business anymore. So if I'm selling them all, it means I'm breaking the business or disrupting the business or putting the business to a halt. ठीक है? अगर कोई फैक्ट्री है जहां पे बिस्किट्स मैन्युफैक्चर होता है, तो the machines, if they are disposed, not replaced, disposed, सारा का सारा dispose हो गया, it means that the business gets stopped or paused. Fixed capital, आगे देखो, fixed capital is also known as block capital. ये लाइन को ब्रैकेट करो और जिसके पास बुक है, और लिखो, ये ब्रैकेट करो कौन अलग से, and write a question there. Why is it called block capital? So fixed capital is also known as block capital because it is blocked up in fixed assets for the lifetime of the enterprise. Okay, lifetime समझते हो? Lifetime मतलब enterprise का life तक या उस asset का life तक. अगर वो asset टूट गया अलग बात है, otherwise lifetime of the enterprise. बुक लाए हो? Then we go to, अब ये बीच का आगे कोट्स को तुम घर पे पढ़ लेना. नेक्स्ट टॉपिक देखो 2.7, चैप्टर 2 में जाओ. 2.7 न्यू बुक है, ओल्ड बुक है? व्हाट इज द पेज नंबर? 132. पेज 32. डू यू हैव अ टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल. ये बुक से करना है, और व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल बुक से करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बुक से करना है. अब देखो, ऐसा मत करना, यहाँ कितना पॉइंट्स दिया हुआ है? 7. 7 तो ये चीज मत करना होना थी कि हम कोई भी 4 कर लेते हैं. अभी क्वेश्चन का पैटर्न बहुत हार्ड हो गया. एमसीक्यू आ सकता है, और दे में आस्क यू व्हिच ऑफ द पॉइंट्स इज नॉट अ फैक्टर, ऐसा भी आ सकता है. तो ट्राई टू यूटिलाइज योर मेमोरी एंड ब्रेन. डोंट डू रोट लर्निंग. रटना नहीं है. जैसे हम समझा रहे हैं, हम जो 3 पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में तुम लिख सकते हो, बट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. वो सब हो रहा है, ऐसे मत सोचो सातों का सातों करना पड़ेगा. ये कोई म्यूजिक का 7 धुन नहीं है. 7 का 8 पॉइंट भी हो सकता था. अगर कोई और बुक होता उसमें 6 पॉइंट होता, किसी में 8 पॉइंट होता. तो मेरे सारे पॉइंट्स को दिमाग में डालो, ताकि समझो कि इनमें से अगर पूछता है डिस्क्राइब एनी 4 और 5 लॉन्ग आंसर में, तो 4 या 5 लिखना. बट समटाइम्स क्वेश्चंस कैन कम लाइक दिस कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर. एमसीक्यू में आ सकता है फॉर एग्जांपल, या घुमा फिरा के कुछ अंदर से आ सकता है. ओके, तो सबको दिमाग में रखो. फर्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, नेचर ऑफ बिजनेस. Put more emphasis in the front points, in the points which are coming towards the beginning. Okay. Nature of business. हाँ, ये और भी जोर से पढ़ो. Manufacturing enterprises require heavy investment in fixed assets such as land and buildings and plant and machinery. Public utility undertakings like railways, transport undertakings, and electricity supply concerns also require heavy investment in fixed assets. But trading concerns require less investment in fixed capital. हम ब्रैकेट करवा दें, ऐसा तो इतना तो याद नहीं कर पाओगे. एक बार फिर से पहले समझा दे रहे. द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. ये तो समझ गए. ब्रैकेट द नेक्स्ट लाइन, ब्रैकेट ओपन. अब समझो, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस require heavy investment in fixed assets such as land and building, plant and machinery. Public utility undertakings, जो लोग public service provide करते हैं, like railways, city transport undertakings and electricity supply concerns also require heavy investment in fixed assets. But trading concerns require less investment in fixed capital. ब्रैकेट क्लोज करो यहाँ पे.
हाँ, इसका क्या मतलब आ रहा है उन्नति, एनी आइडिया? क्या बोलते हैं, कितना अमाउंट कैपिटल लग रहा है वो देखना पड़ता है। अगर हेवी इंडस्ट्री है, अगर तो प्लांट एंड मशीनरी खर्चे ज्यादा होता है। ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसमें कैपिटल बहुत है। टॉपिक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल विल बी 10 करोड़ और 10 लाख, ये सवाल है. मतलब बहुत ज्यादा या ठीक ठाक. अब अगेन रिमेंबर 3 पॉइंट्स, वो भी रिपीट करना. ओके, इफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो इन्वेस्टमेंट विल बी हैवी. नंबर 2, इफ इट इज पब्लिक यूटिलिटी, जो घर पे पानी आता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेस्टमेंट विल अगेन बी हैवी. इफ इट इज नंबर 3, ट्रेडिंग कंसर्न, जो दुकानदार लेके बेच रहा है, माने बना नहीं रहा है, वो ट्रेड कर रहा है, समझे, खरीदा बेचा, तो उसको तो फिक्स्ड कैपिटल, उसका रिक्वायरमेंट क्यों, उसको तो करंट कैपिटल ज्यादा चाहिए. He is not manufacturing, therefore the person does not need to use own factory or huge amount of machines or land. समझे? How do we repeat? क्या क्या 3 पॉइंट बोला मैंने, जल्दी बोलो. Manufacturing industry, heavy investment. Now number 2, public utility. पब्लिक एंटरप्राइज वर्ड यूज मत करो, वो अलग चीज हो गया. पब्लिक यूटिलिटी जहां पे हो रहा है उसमें हेवी है या लाइट. sorry. और थर्ड Trading concerns. अभी तो बहुत तो ध्यान ही नहीं दे रहे. तो Right. ट्रेडिंग कंसर्न्स याद हो गया, याद हो गया. अभी याद कर लो, मतलब तुम याद रखो कि नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट्स फिक्स्ड कैपिटल. इफ द बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक यूटिलिटी, जो मेनली गवर्नमेंट का होता है, heavy investment is required to build road, infrastructure, land building machine. If it's a trading firm, in place of trading concern, you can write trading firm. Then it will be less requirement of fixed capital. Bracket close करो. Then second point है size of business. Again open bracket from second line. Second line bracket open. हाँ, a large sized enterprise requires a greater amount of fixed capital than a small scale firm. For example, a giant steel company such as Tata Iron and Steel Company, Tisco. Tisco का full form याद कर लो, साइड में लिखो full form of Tisco, एरो देके लिखो full form of Tisco learn. ये एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आ सकता है. Tisco is the full form of Tata, जिसको हम टाटा कंपनी बोलते हैं. Needs a huge investment in fixed capital as compared to mini steel plant. बस यहाँ ब्रैकेट क्लोज करो. इजी पॉइंट, इसमें कुछ याद करने का नहीं है. अगर बिजनेस का साइज बड़ा है, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल फिक्स्ड कैपिटल. बिग बिजनेस, मोर फिक्स्ड कैपिटल. ओके, स्मॉल बिजनेस मतलब स्मॉल स्केल, एक छोटा सा यूनिट. और अगर वो ऑल इंडिया, ऑल इंटरनेशनल यूनिट है तो मोर, जैसे टाटा इज ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसका तो सेल पूरे कंट्री में हो रहा है. उसका तो सिर्फ एक ब्रांच नहीं है या एक फैक्ट्री नहीं है ना, तो उसमें तो बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा. थर्ड पॉइंट, हाँ यही से थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स. अगेन फर्स्ट लाइन छोड़ दो, ब्रैकेट द सेकेंड लाइन. Bracket the second line. A company manufacturing capital goods. Okay, underline capital goods. जहाँ पे मेन पॉइंट है कैपिटल गुड्स है कि नहीं. व्हाट आर कैपिटल गुड्स? लाइक मशीनरी. क्या होता है कैपिटल गुड्स? जो हम लोग को ये सामान बनाने में, हाँ, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स. ओके, लाइक बिस्किट इज नॉट अ कैपिटल गुड. Biscuit is consumer good. Like goods which can make money Something for else. us. हाँ. Capital goods are actually capital. Capital goods are those things like machines. मतलब assets हो. Kind of. Fixed asset. हाँ, जैसे तुम्हारा, हम बता रहे, रुको. कैपिटल गुड्स ये रीड कर लेते हैं. कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इंजन्स एटसेट्रा will require a large amount of fixed capital. On the other hand, a firm producing consumer products like soap, hair oil, etc., toothpaste will need small amount of fixed capital. एक और लाइन कर लो. Similarly, firms operating in heavy industries like shipbuilding require
greater fixed capital than firms operating in light industries like sugar mill. ये bracket close करो. तो सेकंड पर तो पूरा ब्रैकेट था ना, सेकंड लाइन से लेकर सेकंड लाइन का वहां से लेके नहीं, एंड तक नहीं, लार्ज साइज से लेके मिनी स्टील प्लांट तक. So in the third point, let's say my company produces biscuits or toothpaste or say lozenges, क्या टॉफी. ओके, तो वो सब कंज्यूमर गुड्स है, मतलब लोग खा के फेंक देंगे, खाएंगे लॉलीपॉप और those things which people will consume. So I will not require huge amount of capital. I will require but not huge amount of fixed capital because I am producing something which is relatively cheaper. है ना, अगर हम कैडबरी भी बना रहे हैं तो वो कितना का आता है, 100 रुपए का आता है, 100-200 का. बट इफ आई एम मेकिंग कैपिटल गुड्स, विच मीन्स इफ आई एम मेकिंग machines to sell to industrialists. Understood हम क्या बोल रहे हैं? जिससे वो कैटेगरी बने. जैसे समझ लो कि देयर आर फार्मर्स, दे नीड ट्रैक्टर्स. तो ट्रैक्टर तो कोई कंपनी बना रहा है ना, हाँ या ना? ट्रैक्टर कौन बना रहा है? ट्रैक्टर कोई मोटर कार का कंपनी बना रहा है. जैसे कि ये नाम सुना, अशोक लीलैंड. कहाँ सुने हो? तो बस में देखे होगे. बस का नाम होता है, ट्रक का नाम होता है, या ब्लू रंग का बस के पीछे लिखा रहता है. तो अशोक लीलैंड इज अ कंपनी. इट्स अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स नॉट कंज्यूमर कार्स बट पैसेंजर कार्स या इंडस्ट्रियल कार्स. मतलब गाड़ी जो हम लोग 4 व्हीलर नहीं बनाता है, वो बनाता है जो पब्लिक बस तुम देखते हो रास्ते में, या फिर ट्रैक्टर. नहीं, वो बनाता है, वो जो भी करता है वो बनाता है जहां तक है. तो तो वहां पे उसको चाहिए फिक्स्ड कैपिटल, हेवी फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज वो जो बना रहा है वो एक चीज का दाम ही लाखों रुपए का है ना. एक ट्रैक्टर तुम खरीदोगे या एक वो बस, एक गवर्नमेंट बस का दाम ही 40-50 लाख रुपया होता है ना. तो उसमें ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होगा. बट इफ आई एम मेकिंग सोप्स, तो बिकॉज सोप इज समथिंग रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, इट इज नॉट लाखों करोड़ों का चीज, वो 100-200-40-50 रुपए का चीज है, तो उसको बनाने में इतना खर्चा नहीं आएगा, फिक्स्ड कैपिटल नहीं आएगा. रॉ मटेरियल्स लगेगा, रॉ मटेरियल्स तो करंट एसेट में आएगा, इट विल नॉट बी फिक्स्ड कैपिटल. ओके, सिमिलरली इफ वी टॉक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री मतलब जहां बहुत ज्यादा लोहा लक्कड़ होता है, लाइक शिप, टन्स एंड टन्स ऑफ आयरन. शिप पता है ना, एक शिप का साइज होता है टन्स एंड टन्स ऑफ स्टील आयरन. कुछ कुछ शिप तो इतने बड़े होते हैं कि उसमें प्लेन आ जाता है, पता है ना. सम शिप्स कैरी प्लेन्स. मतलब अभी जो वॉर चल रहा था, तो अमेरिका, बात था कि अमेरिका इज गोइंग टू सेंड इट्स एयरक्राफ्ट्स ईरान में. तो एक बड़ा शिप के अंदर 1000 प्लेन्स आ जाएंगे, 1000 या 100-200 जो भी. तो हाँ, तो लार्जेस्ट शिप्स कैन बी वेरी बिग. शिप्स का पर्पस होता है, तुम जिस शिप में बैठते हो, हम लोग जिस शिप में बैठते हैं, वो स्टीमर है या क्रूज है, वो पैसेंजर्स के लिए. बट जिस शिप को बनाया गया है नॉट फॉर पीपल बट टू कैरी कार्गो. अब कार्गो में भी डिफर करता नहीं, कार्गो क्या है, कार्गो में ऑयल कार्गो है या कार्स है या प्लेन्स है. सम शिप्स आर डिजाइन टू कैरी प्लेन्स, समझे, प्लेन्स और ट्रेन मेट्रो. कोलकाता में जो मेट्रो है, नया वाला जो मेट्रो है, वो चाइना से आया है, चाइना या जापान, वहां से आया था. उसका जो रेक्स होता है ना, डब्बा डब्बा जिसको तुम घुसते हो, वो ऐसे करके आ रहा है. तो सोचो, तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सम शिप्स आर ह्यूज बिकॉज दे आर मेंट टू कैरी ट्रेन्स और प्लेन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स भी, आई थिंक. ओके, तो उसमें कितना कैपिटल चाहिए सोचो, जब उसमें लाखों करोड़ों टन्स का काम हो रहा है ना. ठीक है, वहां ब्रैकेट कम ओपन कर दो. तो शिप बिल्डिंग तुम्हारा हेवी इंडस्ट्री हो गया, और लाइट इंडस्ट्री लाइक शुगर मिल. तो शुगर मिल इज बेसिकली शुगर फैक्ट्री जहां पे शुगर को प्रोसेस किया जाता है. नंबर 4, तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर वेरी वाइटल, डोंट स्किप देम. नंबर 4, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ब्रैकेट ओपन. अ कंपनी employing capital intensive techniques of production such as automatic machinery require
higher amount of capital as compared to a company employing labor-intensive techniques such as hand tools. For example, a power loom plant requires more fixed capital than a hand loom plant. पावर लूम प्लांट में कपड़ा जो बन रहा है वो मशीन से बन रहा है, मतलब मशीन ज्यादा है, वर्कर्स कम है. और हैंडलूम इंडस्ट्री में हैंड का काम ज्यादा हो रहा है, हैंड से स्टिचिंग विचिंग ज्यादा हो रहा है और मशीन से कम हो रहा है. यू नो हम लोग का 11 में इकोनॉमिक्स में था ना, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव. तो इफ द इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव व्हिच मींस मोर मशीन्स लेस वर्कर्स, so there will be more fixed capital requirement because more machines need to be purchased. And if the industry has less machine, more workers, तो फिर वर्कर्स को पे करने के लिए क्या चाहिए? सैलरी, कैश चाहिए. मतलब करंट वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, है ना. कैश मतलब वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए. ये पूरा ब्रैकेट कर दो दिस पॉइंट. पॉइंट नंबर 5, diversity of product lines. Bracket open. A multi-product company manufacturing diversified products requires more fixed capital than a firm manufacturing a single product. यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो बस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सही करो. Some companies manufacture a variety of products like ITC. ITC का कॉपी भी है तो कॉपी, आईटीसी का कॉपी भी है, आईटीसी का आटा भी है, आशीर्वाद आटा, आईटीसी का साबुन भी है, सैवलॉन ना क्या है, आईटीसी का चिप्स भी है, बिंगो. मतलब उसमें जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसका बहुत वैरायटी है. क्लियर. आईटीसी कंपनी का तेल भी है, तो आईटीसी का वैरायटी ज्यादा है, मींस इट इज सेलिंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स. यू नो, डाइवर्स, नॉट सिंगल, मल्टीपल, अलग अलग, एक चीज नहीं. तेल अलग हो गया, खाने का चीज अलग हो गया, चिप्स अलग हो गया, कॉपी अलग चीज हो गया. कॉपी के लिए उसको पेपर का मशीन रखना पड़ेगा, तेल के लिए कोई और तरह का मशीन रखना पड़ेगा. तो बिकॉज उसका डाइवर्सिफाइड चीज है, सो इट विल हैव टू इन्वेस्ट मोर इन डिफरेंट मशीन्स. एंड इफ द फर्म इज प्रोड्यूसिंग ओनली वन सिंगल थिंग और वन टाइप ऑफ थिंग, ओके, वन टाइप ऑफ थिंग, सिर्फ एक चीज बना रहा है, जैसे मान लो खाली लेदर का चीज बना रहा है, जैसे कि खादिम्स खाली जूता या चप्पल बना रहा है सिर्फ, वो तो खाना वाना नहीं बना रहा, तो इट विल हैव रिलेटिवली लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल. देन पॉइंट नंबर 6, mode of acquiring fixed assets. Bracket open. A business firm which purchases fixed assets on cash down basis requires huge amount of fixed capital. On the other hand, an enterprise which acquires land, building, plant and machinery and other fixed assets on lease or hire purchase will need less fixed capital. Bracket this entire point. Point number 6, if the business is buying the entire machine on cash, then more capital is required. But if the machines are being bought or not being bought, they are being hired, there is a method called lease or hire purchase. In that case, front payment या down payment कम होगा. Last point, point number 7, intangible assets. The amount invested in acquiring goodwill, intangible assets which you cannot see, patents, copyright, etc., also influence the amount of fixed capital needed for business. This bracket, this entire line. This point says, you know, some businesses need to buy some trademark, etc. Especially, it is more important in those companies like pharma companies, pharmaceutical companies हुआ, जिसमें हर दिन कोई नया नया टाइप का फॉर्मूला का दवाई बनता है, तो उसको खरीदना पड़ता है, पेटेंट को खरीदना पड़ता है. ओके. तो उन चीजों में द बिकॉज वेरी फ्रीक्वेंटली दे नीड टू बाय पेटेंट्स और सच राइट्स, सो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. एंड व्हेन यू आर बाइंग पेटेंट्स इट विल गो अंडर फिक्स्ड कैपिटल बिकॉज वो फिक्स्ड एसेट है. हम लोग बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट को सबसे टॉप में लिखते हैं. इट इज नॉट करंट एसेट, इट विल स्टे विथ यू. Then next point is meaning of working capital.
bracket open. Define. Working capital means the capital invested in working assets or current assets, such as cash, stock of goods, debtors, and short-term investments, etc. It represents the liquid funds which are required for day-to-day operations of an enterprise. Bracket close. Working capital is the capital which is basically daily cash which should be in your pocket. Okay, daily cash which should be in your pocket, in your hand. जिसको तुम रोज पेमेंट कर सको, खरीद सको, बेच सको, वैसे. Go to the next para. Bracket open. Working capital is also known as circulating capital or revolving capital because it keeps on circulating or revolving in business. It is invested, recovered, and reinvested repeatedly during the operating cycle of business. वहां बगल में लिखो, why is it called circulating or revolving? The cycle of business of the ये तो mark करो. You can do. You can, because if it comes for 2 marks. You can write why is it called? Why is working capital or WC called CC or RC? Short में लिख दो CC. Why is it called CC or RC? Why is it called circulating capital or revolving capital? It circulates in the business. It goes away, comes back, like washing machine. Goes away, comes back. Goes away, comes back. I buy raw materials. I make them into finished goods. I sell them. I get the money back. Again, I buy the raw materials. I pay the salaries. I sell them. I get the money back. Like this. Then you will find there are 2 special terms. पहला gross working capital. इसके बाद ये अलग से आ सकता है कि what is gross working capital or what is net working capital. Gross working capital. Gross working capital, bracket open, और वहां लिखो define. Gross working capital means, go and read this. Gross working capital means the total amount of funds invested in current assets. Current assets are those assets which are converted into cash in the ordinary course of business. Thus, gross working capital equal book value of current assets. Bracket close. Here it is said that gross working capital means the total amount of funds, money, invested in current assets. Total money invested in current assets. Current assets, already you know what are current assets. जो हम लोग किए हैं, debtors, stock, closing stock, ये सब. So current assets are those fixed assets which are converted into cash in the ordinary course of business. So gross working capital equal to book value of current assets. Book value मतलब balance sheet value. Book value का मतलब है balance sheet value. मतलब डेप्रिसिएशन का जितना बचा है वो. हाँ. हाँ. नहीं. बुक वैल्यू मतलब डेप्रिशिएट करके जो तुम बैलेंस शीट में दिखाते हो ना. सपोज अगर लिखो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000 तो कितना आएगा 8,000. वो बुक वैल्यू है. नहीं तुम पूरा करो. मैम को हटाओ. तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. अगर तुम्हारा आएगा व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो तुमको तो आंसर लिखना पड़ेगा ये, है ना. इसके बाद है नेट वर्किंग कैपिटल. देखो पहले समझो. इफ आई हैव करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 10 लाख, स्टॉक फॉक सब मिला के, स्टॉक, डेटर्स और क्या, बिल्स रिसीवेबल, है ना. बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, यही तो मेन है. एक को मिला के आई एम हैविंग 10 लाख रुपीज. सो दिस इज माय ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस Working capital. From this, if I subtract my current liabilities, let's say sundry, creditors, or short-term bank loan, bills payable, current liabilities, not equity share capital, current liabilities. तो minus करके जो आएगा that will be net working capital, which means the excess of current assets over current liabilities. Negative में आएगा तब आंसर.
समझे, नेगेटिव में आ सकता है ये। तो मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट और लायबिलिटी होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और ये अकाउंट्स में जो एक चैप्टर है, रेशियो चैप्टर है सेकंड बुक में, उसमें ये आता है, वर्किंग कैपिटल निकालना है तो लिखना है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब नेट वर्किंग कैपिटल है। ओके, करंट एसेट्स नॉट टोटल एसेट्स। यू विल नॉट टेक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सिर्फ करंट एसेट्स, हाँ, जो इसी साल हम लोग को मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा, माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देखो फटाफट ब्रैकेट ओपन करो। इट मींस द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ओके, यही मेन डेफिनेशन है। यहां ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कर दो एंड देन ब्रैकेट द इक्वेशन कि नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये मेन डेफिनेशन है। अब बीच में लिखा है व्हाट आर करंट एसेट्स, वो एग्जांपल्स दिया हुआ है, वो तुम अपने मन से लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सो करंट एसेट्स आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, marketable securities, inventory money, closing stock, and prepaid expenses. Marketable securities means short term shares. जैसे अगर कोई, अगर मेरा कंपनी स्टॉक मार्केट किए थे, याद है क्लास 11 में, उसमें थोड़ा बहुत टर्म्स था, इंट्राडे था, इंट्राडे मतलब अगर आई एम डूइंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग विच मींस आज लेके हम आज ही बेच देंगे या आज लेके कल बेच देंगे। ओके, तो इट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी। Okay, it is marketable security, which means security means shares. Marketable means tradable. I am not going to keep the shares for more than 1 year. I am going to buy today and sell within this month or within this year. Current liabilities obviously उसका examples है sundry creditors, bills payable, short term loans जैसे bank loans. Short term loans are those loans which are repayable within 1 year. Within 1 year को बोलते हैं short term. 1 year से 3 years को बोलते हैं mid term. और more than 3 years को बोलते हैं long term loan. अगर मैं कहूं कि मेरा लॉन्ग टर्म लोन है, which means I have to pay the loan in 5 years or 10 years, not in 1 or 2 years. And acquired expenses मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्वायर्ड लिखा है, इसका मतलब एक्रूड होगा एक्चुअली। ये क्या लिखा है तुम्हारे बुक में, एक्वायर्ड या एक्रूड? नहीं, न्यू बुक में क्या लिखा है, एक्वायर्ड। ये होना चाहिए एक्रूड एक्चुअली, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है। मींस जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एनीवे, और ये फॉर्मूला ठीक है। इसके बाद बस सीधा अगले टॉपिक में जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये सब शॉर्ट नोट्स में आता है, 2-2 मार्क के लिए। पहला क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। उन्नति पढ़ो जोर से, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। amount of working capital required permanently to operate the minimum level of business activity. It is permanently locked up in current assets. It is therefore raised to long-term sources of finance. Permanent working capital is required. सबसे पहले तो ये ब्रैकेट करो, ब्रैकेट ओपन, इट रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल required permanently, just underline the word permanently separately, ये वर्ड देना होगा, to operate the minimum level of business activity. मेरे पास कुछ कैश हमेशा होना चाहिए, आई कैन नेवर बी जीरो। अंडरस्टूड? मिनिमम कैश या मिनिमम कैपिटल जो होना ही चाहिए हमेशा, अदरवाइज बिजनेस चल नहीं पाएगा। क्लियर? बिजनेस को हमेशा कुछ पैसा उसके पास होना चाहिए, कुछ कुछ पे करने के लिए। इट इज परमानेंटली लॉक्ड अप इन करंट एसेट्स। तुम सोचो ना, तुम्हारे घर में जो कैश इन हैंड है घर पे, वो तो कैश एट बैंक नहीं है, कैश इन हैंड है, तो वो तो वर्किंग कैपिटल जैसा ही है। क्या ऐसा होता है कि तुम्हारे घर में पैसा कभी भी जीरो हो जाता है? कभी भी नहीं होता। मींस एक मिनिमम अमाउंट हर समय घर पे रहता है ना, तो समझ लो वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। ओके, एक मिनिमम अमाउंट रहता है, हो सकता है वो 10,000 हो सकता है 5,000 हो, कि उतना तो हर होगा, क्योंकि वरना सडनली कुछ किसी को देना होगा या कुछ कहीं
कोई घर पे आ गया, उसके लिए कुछ मंगाना है या किसी को पे करना है, उतना होना चाहिए। ठीक है, वो वैसे ही हर बिजनेस में भी डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस का स्केल एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो होगा ही होगा। नहीं, जनरल रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते, वो प्रॉफिट का पार्ट है, वो तुम उसको मेंटली सोच सकते हो कि रिजर्व जैसा है, बट रिजर्व इज समथिंग एल्स, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड। अच्छा, अब आगे लिखा है इट इज अच्छा, वहां ब्रैकेट क्लोज कर दो इन करेंट एसेट्स के बाद। इसके बाद आगे देखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इनिशियल वर्किंग कैपिटल, ये अलग से आ सकता है, व्हाट इज इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट इज रेगुलर वर्किंग कैपिटल, या डिस्टिंग्विश करने आ सकता है। हाँ, ब्रैकेट ओपन। इनिशियल वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल which is required at the time of commencement of a business, when the business starts. Bracket close, then skip a line, then again bracket open. In the initial stage, the business usually does not get credit from suppliers. Therefore, all operating expenses have to be incurred in cash. यहाँ bracket close कर दो जाए. At the beginning, when the business is small and unknown business है, small है, unknown है, new business है. So suppliers will not believe the business. Suppliers will not believe in the business. They will not have trust. So it will have to buy a lot of things cash दे देके. ठीक है, कुछ समय बाद जब रिश्ता हो जाएगा तो वो लोग उधार में बेचेंगे। ठीक है, तुम उधार में ले लो, फिर माल को बेच के मेरे को दे देना। तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल वर्किंग कैपिटल। एंड नंबर बी इज रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ब्रैकेट ओपन। It means that part of permanent working capital which is required for the continuous business operations. It represents the excess of current assets over current liabilities. It consists of enough cash to meet short-term obligations, to build up inventory, and enough stock of finished goods to ensure quick delivery to customers. Bracket close. So this is something which वो होना ही चाहिए। कभी किसी शॉप में गए हो? Have you seen a shop? A biscuit shop, like a retail shop? वहां पे क्या होता है? बिस्किट्स का पैकेट है, तेल तेल है, शैम्पू है, चिप्स है, वो खत्म होता जाता है। लेकिन तुम देखो, तुम जब भी जाते हो कभी भी जीरो नहीं होता है, तुमको कुछ ना कुछ हमेशा दिखता है। ऐसा होता है कि चिप्स भी खत्म, ये पूरा दुकान खाली, ऐसा कभी नहीं होता ना। होता है कभी भी। विच मीन्स क्या, कि विच मीन्स कि एट एवरी टाइम देयर इज सम स्टॉक विच इज ऑलवेज देयर, विच मीन्स सम वर्किंग कैपिटल ही है वो, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेबल चेयर फर्नीचर, आई एम टॉकिंग अबाउट चिप्स एंड सिगरेट एंड शैम्पू एंड ऑल, विच इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्योंकि वो खरीद के बेच रहा है वो, बट कुछ पार्ट हमेशा रहेगा, because the shop cannot afford to become zero suddenly. Okay, so that is regular working capital. Then point number 2, we are doing types of working capital. Temporary or variable working capital. Bracket open. It is the working capital that is required in addition to permanent working capital. It is required to meet seasonal and special needs of business. It is fluctuating in nature and is therefore known as variable working capital. Bracket close. After that, underline the last line of this paragraph. Temporary working capital is of two types. अच्छा, ये क्या पॉइंट है? टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। कुछ कुछ वर्किंग कैपिटल है जो टेम्पोररी चाहिए, which means during peak season, like in Durga Puja, during peak season, they may need slightly more working capital for 1 month. Imagine the state of Kolkata during Durga Puja, especially the food counters, stalls, chowmin का दुकान, उसमें during that 1 month, more number of, ज्यादा गैस लगेगा, ज्यादा सिलेंडर लगेगा, ज्यादा रॉ मटेरियल्स लगेगा। अगर वो हर दिन 20 पैकेट चौमिन को खोलता है, तो अब वो
50-100 पैकेट खोलेगा, मतलब वो तो वर्किंग कैपिटल है ना, रॉ मटेरियल्स. गॉट इट. It may need to hire some extra chairs, tables. It may need to hire what we call casual workers, not permanent workers, casual workers. कि एक महीने के लिए एक्स्ट्रा कुक को रख लिया, एक महीने के लिए 4 एक्स्ट्रा वेटर्स को रख लिया. कॉन्ट्रैक्चुअल है, खाली एक महीना काम करना, करेगा वैसा. समझे? तो दैट इज, उसके लिए जो पैसा लगेगा दैट विल बी टेम्पोररी और वर्किंग कैपिटल. After that 1 month is over, that working capital can be used in some other purpose. अब इसमें दो टाइप्स है. पहला है जो एग्जांपल हम दे रहे थे अभी, सीजनल वर्किंग कैपिटल, जो पीक सीजन में जरूरत होता है. हाँ, ब्रैकेट ओपन. इट मींस, तो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज सीजनल, यू विल राइट दिस. इट मींस द एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. Firms dealing in products of a seasonal nature, like woolen garments, fans, umbrellas, AC, require more working capital during busy season. Now, if you are selling umbrellas and raincoats, you will be more busy during monsoon. If you are selling woolen garments, like sweater, shawl, you will require more working capital during winter. यहाँ ब्रैकेट क्लोज करो, during the busy season, then skip the quotation and go to the next line after quotation. Bracket again open karo. When the busy season, yahan se, when the busy season begins, additional working capital is required to buy raw materials, means more raw materials, and pay extra labor. For example, sugarcane, wheat, cotton, etc. are to be purchased in bulk during the season when these items are produced. Bracket close. Second type of extra working capital is special working capital. This is, इसका कोई सीजन नहीं है, ये स्पेशल केसेस में हो सकता है, लॉकडाउन में, इमरजेंसी में. समझे? जैसे अभी अभी वॉर के समय क्या नहीं मिल रहा था, एलपीजी नहीं मिल रहा था. तो तुमको पता है जो रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट्स को कंज्यूमर एलपीजी खरीदना पड़ता है. मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, कंज्यूमर नहीं, इंडस्ट्रियल एलपीजी. मतलब हमारे घर में जो एलपीजी आता है उसका रेट अलग है, वो कंज्यूमर लाइसेंस में आता है. बट जो रेस्टोरेंट्स है, उनको जो खरीदना है सिलेंडर, दे आर गेटिंग इट एज इंडस्ट्रियल एलपीजी, सो देयर रेट इज मोर. दे डोंट पे 1000, दे पे 2000. अभी बिकॉज ये स्पेशल केस था वॉर वाला, तो स्पेशल केस कैन कम सडनली. कॉन्टेंजेंट है वो, यू नो व्हाट इज कॉन्टेंजेंट. तो इट इज कॉन्टेंजेंट, इट कैन हैपन एनी टाइम, यू कैन नॉट मेक एंटिसिपेटेड. तो अभी उनका एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगा कि नहीं लगा? लगा. तो उनका जो कॉस्ट लगता था सिलेंडर पे, नाउ सडनली दे वर पेइंग मोर फॉर सिलेंडर एंड ऑयल एंड कुकिंग गैस. सो दैट इज स्पेशल वर्किंग कैपिटल. So bracket open. It refers to extra funds required to meet future contingencies that may arise in business. You remember contingency, the word we had done in accounts in class 11 also. Contingent assets. Contingent or contingency means to meet future liabilities which may arise all of a sudden. Contingencies का मतलब नहीं पता तो अंडरलाइन करके लिखो sudden future liabilities. ये इसका मतलब है. Underline the term and write sudden future liabilities. Contingency means. But you cannot ascertain that when it will happen. So it is advisable to set up a reserve working capital to act as a cushion in times of emergencies. Bracket close. एक बार पीछे बैठो, वहां पीछे में बैठो. इमरजेंसीज में अच्छा नहीं, फिर से ओपन करो और चलना आगे, एग्जांपल भी लेना पड़ेगा. अगेन ओपन द ब्रैकेट. अ बिजनेस फर्म मस्ट सेट असाइड एडिशनल फंड्स टू कोप विथ अनफोर्सीन कंटिंजेंसीज. अब वो क्या क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है. स्पेशल ऑपरेशंस टू मीट सडन स्पर्ट इन डिमांड. स्पर्ट मींस राइट, राइज, a sudden rise in demand.
Then unusually stagnant periods or depression, जैसे लॉकडाउन में हुआ था, रिसेशन में होता है, लीडिंग टू पाइलिंग अप ऑफ इन्वेंट्री, पुराना माल जमा होता जाता है, बिक नहीं रहा है. एंड थर्ड इज इजी, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, natural calamities like earthquake, flood, fire, etc. Bracket close. Then turn the page. अच्छा, importance of working capital is not in the syllabus most probably. होगा तो बाद में करा. हाँ, वो नहीं है सिलेबस में. ठीक है. 2.11 में जो लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. हम लोग अभी क्या किए थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल किए थे, याद है? अभी है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 और भी पढ़ो, नेचर ऑफ बिजनेस. Manufacturing firms require considerable working capital as they must build stock of raw materials and finished products. On the other hand, public utility undertakings require less working capital as they do not have maintained inventory. ब्रैकेट कर दो पूरा. अब वो उसका उल्टा है. याद है हमने क्या डिस्कस किया था? मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, नहीं सॉरी, पूरा पूरी उल्टा नहीं है. वहां पे हमने बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स एंड पब्लिक यूटिलिटी require heavy fixed capital, trading firms require less. यहाँ पे है manufacturing firms require more. तो वो दोनों में, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों में है. मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों में हैवी चाहिए, बट पब्लिक यूटिलिटी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. तुम देखो ना, रेलवे, जो गवर्नमेंट का ट्रेन चलता है, वो पब्लिक यूटिलिटी का एग्जांपल है. ट्रेन सर्विस, उसमें मेन चीज क्या है? ट्रेन मेन है और पटरी मेन है. उसके लिए चाहिए फिक्स्ड कैपिटल, करोड्स एंड करोड्स ऑफ मनी टू बिल्ड द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर. वर्किंग कैपिटल में क्या है? ट्रेन का पेट्रोल और क्या, और सैलरी ऑफ ट्रेन में स्टाफ इतना तो होता नहीं है, नॉर्मल स्टाफ है, नॉर्मल सैलरी है ना, तो वो कम चाहिए, कंपैरेटिवली कम चाहिए. पॉइंट 2, उर्वी एक और पॉइंट पढ़ो, साइज ऑफ बिजनेस. Firms carrying on large scale operations are undertaking higher volume of production require more working capital than small scale firms. For example, a departmental store needs a greater amount of working capital as compared to a hawker. हाँ, ये पूरा ब्रैकेट कर लो. इफ योर firm is small scale, like you are a hawker, then you need less working capital. If your firm is large scale, you are a departmental store like Big Bazaar or something, you need more working capital. Third point, manufacturing cycle, bracket kar lo pura. It means the time involved in the production of goods. Longer is the time gap between purchase of raw materials and production of finished goods. Higher is the need for working capital. चीज को बनाने में कितना टाइम लगता है? If you buy the raw materials today and produce it today or by tomorrow, खाने पीने का चीज में, जैसे सिंगाड़ा पकोड़ा, then less working capital is required. क्योंकि आज खरीदेंगे, आज बनाएंगे, आज कल में बेच देंगे. But if I buy the raw materials today and the making process is long, जैसे क्लोथ्स में होता है, क्लोथ्स में आज अगर कॉटन आएगा तो उसका याद है बहुत सारा प्रोसेस होता है. हम लोग को प्रोसेस किए थे. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री याद है क्लास 11 में? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग नहीं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. हाँ, उसमें था ना असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, अलग अलग टाइप का था. सिंथेटिक, एनालिटिकल, ये 4 था. तुम भूल गए हो, तुम क्लास 11. तो हमको कैसे याद है? सिंथेटिक, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, ये 4 सब टाइप था. याद करो, ये 4 सब टाइप था. ये 4 में प्रोसेसिंग वो था जो प्रोसेस बाय प्रोसेस से गुजरता है. इसका एग्जांपल था क्लोथ्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. पहले वीविंग होगा, फिर ये होगा, फिर लास्ट में डाई और कलर होगा. याद है? तो उसमें टाइम लगता है. तो जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा बनाने में, उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा. पॉइंट नंबर 4 पढ़ो नती. रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर. Turnover means the speed with which the amount of working capital is recovered by the sale of goods. When the turnover is rapid, the amount of working capital required is small. This is because working capital is locked up in business for a short period. वहां पे एग्जांपल अपने आप से लिख, अपने लिए लिख लो, अपने मन से. मतलब आप एग्जाम में मत लिखना. देखो एग्जांपल मूडी एंड पुच का, एग्जाम में मत लिखना, बस खाली समझ लो.
मूरी एंड पुचका में टर्नओवर फास्ट है. टर्नओवर का मतलब है हाउ क्विकली द सेल इज मेड एंड द मनी इज रिकवर्ड. मूरी बनाया बेचा, अभी बना के अभी बेच दिया. एग्जाम में एग्जाम्पल मत देख लेना, तुम लिख सकते हो, वैसे को फर्क नहीं पड़ता. गोलगप्पाज इन इंडिया से लिख देना. पुचका मत लिखना जी. आईसीसी में पेपर अगर आउट ऑफ बंगाल जाएगा तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड पुचका क्या होता है ना. पुचका इज अ वेरी क्यूट टर्म. नहीं, वो लोग दे यूज गोलगप्पा एंड पानी पूरी. हाँ, पुचका बहुत लोग को नहीं पता है. पुचका इज अ क्यूट बंगाली टर्म जो लोग यूज करते हैं. पानी पूरी यूज करोगे बाकी लोग समझ जाएंगे. पॉइंट नंबर 5, उन्नति कंटिन्यू. टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल. Purchase and sale, a business firm requires comparatively small amount of working capital. It buys goods and services on credit and sells them in cash. On the other hand, if it purchases in cash and sales on credit, large amounts of working capital. ये पूरा ब्रैकेट कर दो. पूरा 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 ब्रैकेट करो. 5 में भी पूरा ब्रैकेट करो. हाँ, तो पॉइंट नंबर 5 में है कि इफ यू आर बाइंग इन कैश एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट देन मोर वर्किंग कैपिटल. इफ यू आर बाइंग ऑन क्रेडिट, थम्सअप लोग जो थम्सअप का बॉटल होता है वो लोग ऐसे उधार में लेते हैं और कैश में बेचते हैं. फिर कैश से पैसा जो आता है उससे पे करते हैं अपने सप्लायर को. मींस इफ यू आर बाइंग ऑन क्रेडिट, सेलिंग ऑन कैश, देन लेस वर्किंग कैपिटल. पॉइंट नंबर 6 पूरा अगेन ब्रैकेट करो. कौन रीड? क्रेडिट पॉलिसी. When a liberal credit policy is followed, more working capital is required. On the contrast, smaller working capital is needed in cash of tight हाँ, credit policy. अंडरलाइन क्रेडिट पॉलिसी और लिख लो बंगाली या हिंदी में उधार. कस्टमर को उधार. ये हिंदी या बंगाली में लिख लो तब समझ में आ जाएगा. नहीं, तुम अपने आप को समझाने के लिए लिखो. कस्टमर को उधार. नहीं, तुमको एग्जाम में नहीं लिखना. अगर सपोज मेरा शॉप है, ठीक है, और हम कस्टमर्स को उधार में दे रहे हैं कि हाँ उसका खाता में लिख लिए, तो मेरे पास कैश तो जल्दी जल्दी नहीं आएगा ना. समझे? बहुत लोग नहीं करते क्या, जो ग्रोसरी है वो खाता में लिख लेते हैं, 1 महीना बाद पेमेंट आता है, घर जाके पेमेंट ले लेते हैं. तो उस केस में द शॉप इज फॉलोइंग अ लिबरल पॉलिसी. तो उस समय कैश तो तुरंत आएगा नहीं, 1 महीना बाद आएगा. therefore the shop will require more working capital. Clear? And when there is no credit policy or very limited or tight policy, which means buy on cash. तुम्हारे घर के पास अगर दुकान है, तुम्हारे घर के नीचे, ऐसा हुआ है कभी तुम उसे कुछ ले बोले हम कल दे देंगे आपको पैसा? हुआ है तो अच्छा, अब तुम पैंटलून्स में जाके बोलो हम एक बार कल आपके दे देंगे आपको. तुम शर्ट उठा के ले जाओ वहां से और बोलो हम कल दे देंगे आके. वो देगा क्या? इसका मतलब पैंटलून्स में जीरो क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब वेरी टाइट. समझे? हाँ, जहां पे इमीडिएट पेमेंट है वहां पे उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा, बिकॉज बेचते ही पैसा आ जाएगा. पॉइंट नंबर 8, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. ये पॉइंट स्किप कर सकते हो, ये स्किप कर दे रहे हैं, ये इतना फालतू, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पॉइंट नंबर 8 में जाओ. गुडविल ऑफ बिजनेस, वापस से पूरा ब्रैकेट करो. एन एंटरप्राइज एंजॉइंग good reputation, माने goodwill in the market, can easily and quickly obtain short-term loans from banks, so it requires a less amount of working capital. अगर मेरा कोई goodwill ही नहीं है तो bank will not give me even small amount of loan. I will have to keep cash all the time. More working capital. If I have goodwill, overdraft for example, अगर मेरा थोड़ा बहुत goodwill है, मेरा current account का goodwill है, तो मुझे overdraft वगैरह मिल जाएगा. मुझे सडनली लोन चाहिए, एक्स्ट्रा 50,000 चाहिए मुझे, मैं ओवरड्राफ्ट कर सकूंगा अगर मेरा बैंक के साथ एक अच्छा रेपुटेशन है. पॉइंट नंबर 10, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स. A growing and expanding firm requires more working capital than a stagnant firm. Easy है. Point number 10, seasonal variations. Working capital requirements of businesses which are subject to seasonal variations are high during a particular season. तो जो बिजनेस वेरी करता है, जैसे एसी का बिजनेस या जो मैंगो जूस का बिजनेस, आइसक्रीम का बिजनेस, डिमांड सेम नहीं होता ना. डिमांड इज मोर ड्यूरिंग समर. इफ आई एम रनिंग अ आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक शॉप,
I will need more working capital during summer and less working capital during winter. If my shop is selling, say, all kinds of juice, fruit juice, ice cream, cold drink, soda, तो ज्यादा बिक्री कब होगा? समर में ज्यादा होगा, तो आई विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग समर. तो सीजनल वेरिएशन होगा. एंड लास्ट पॉइंट, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस. अगेन पूरा ब्रैकेट करो. Cyclical changes create emergency demands for working capital during boom period. Okay, boom, when the industry is at very high, there is need for larger working capital to support higher. Higher के बाद कुछ लिखा है? Production में हाँ, production. हाँ, उसमें ऐड करो higher production and demand. वहाँ लिखो higher production and demand. और ये टिक कर लो, डिफरेंस को टिक कर लो. हम लोग की बात करें तो differences मतलब differences ही पढ़ने दोनों सारा point. हाँ, ये जो बॉक्स है इसको टिक कर लो. क्लियर? और बाकी शुरू का तो नोट सब दे दिए थे. तो वी आर डन विथ चैप्टर 2. चैप्टर 1 में थोड़ा बहुत हम बोले थे बुक से कराएंगे, वो नेक्स्ट वीक करेंगे.